Hello friends, I am Abhishek and I am here with my third lecture of my chapter motion. So we will start with my third lecture. Till now, I have already discussed about scalar and vectors. I have already discussed about distance and displacements. And in my last lecture, I have already given you the definition of speed and velocity. So from there we will start my topics, and if till now if you haven't watched my video, kindly go through my channels and please watch my video and please like and subscribe also. So we'll start with my lecture today. So my first topic is speed and velocity. So I already told you the definition. So definition was rate of change of distance or displacement is called as speed or velocity. It means that rate of change of distance will give you speed and rate of change of displacement will give you velocity. So there were two terms, I already discussed this. One is rate and second is change. So what is rate? Rate is simply whenever there is a rate term, it means that with respect to time. If you will consider time, then it will be rate. And what is change? Change is simply nothing but final minus initial. जो बाद का पोजीशन है और जो पहले का पोजीशन, आप दोनों का डिफरेंस देख लो, डेट विल गिव यू द चेंज. चेंज मीन्स जो बाद में हुआ और जो पहले हुआ था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेट इज ऑलवेज चेंज. ये हर कुछ में ऐसा ही है मैटर. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू स्पीड और वेलोसिटी. तो आप क्या करो, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल जितना भी चेंजेस आएगा उसमें डिवाइड बाय टोटल टाइम जितना उस ऑब्जेक्ट को लगेगा, उसको आप आपस में डिवाइड करोगे तो ये क्या दे देगा, स्पीड. जितना भी उस सेक्शन में ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जितना लगेगा उसको, डेट विल गिव यू स्पीड. सिमिलरली उस मोमेंट पे जितने उस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट करेगा ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम जितना उसको लगेगा, डेट विल गिव्स यू द velocity. Simply speed always be positive. Why positive? Because distance is always positive, but velocity can be positive, negative or zero depending upon displacement. I already actually that's why I told you कि मेरे सभी lectures आपको आपस में link मिलेंगे. So if you have to understand everything very properly, kindly go through my previous videos, because मैं हर videos में आपको वो चीज़ बता नहीं सकता या repeat नहीं कर सकता. It's a totally wastage of time. So kindly go through my that lectures and watch. So what is the thing that change in distance or change in displacement with respect to time? So what will the unit of speed? Change in distance or simply distance divided by time. What is the unit of distance? I already told you distance is a length, unit is meter. What is the unit of time? That is second. So meter top में और second नीचे, so meter ऊपर में meter per second. That will be the SI unit of speed. What will the unit of velocity? Same, because distance के वाला displacement है उसका भी unit meter ही होने वाला है. Divide by total time, तो meter per second will be the SI unit of velocity also. So now we will, by an example we will see how we can calculate speed in an interval. Suppose ये एक वे है आपका, एक रोड है, ऑब्जेक्ट ने ओ पोजीशन से स्टार्ट किया, इट मूव्स अप टू ए, देन टू बी, देन टू सी, देन टू डी. इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिमिलर है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है. कोई शॉर्टेस्ट पाथ, कोई एक लॉन्ग वे से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करने का ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है कि स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल किया है तो जो भी डिस्टेंस है और जो भी डिस्टेंस दोनों इक्वल होने वाला है. तो किसी एक सेक्शन की बात करें, सपोज ओ टू ए, टोटल डिस्टेंस कितना है 20 मीटर्स, टोटल टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स. तो स्पीड या वेलोसिटी कितना होने वाला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड्स. क्लियर. नेक्स्ट सेक्शन ए बी में आते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है 30 मीटर्स, टोटल टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड्स. सो टोटल स्पीड या वेलोसिटी कितना होने वाला है 30 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 7.5. ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड. नेक्स्ट सेक्शन बी टू सी, बी टू सी के लिए आपको टोटल डिस्टेंस कितना है 20, टोटल टाइम कितना लगा है 3 सेकेंड. सो स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, सो 20/3, दैट विल बी द स्पीड. फॉर नेक्स्ट सेक्शन सी टू डी, सी टू डी के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, टोटल टाइम कितना लगा है 4, सो 30 डिवाइड बाय 4 विल बी स्पीड. क्लियर है. तो आपको हर सेक्शन के लिए स्पीड और वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में है. सपोज कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ये सभी स्पीड किलोमीटर पर आवर में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए,
तो इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आप मीटर पर सेकेंड में है उसको कन्वर्ट करना चाहे किलोमीटर पर आवर में, या इसका रिवर्स अगर होता है तो सिंपली मैथमेटिक्स के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दे देता हूँ, आप उसको याद रखो, और आपको कैसे कन्वर्ट हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मीटर पर सेकेंड इज देयर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर। तो मीटर को पहले किलोमीटर को में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे, और सेकेंड को आवर में डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाय 3600 करोगे, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो यू विल फाइंड डैट कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना पड़े तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। किलोमीटर को मीटर में करोगे तो 1000 मल्टीप्लाई ऊपर हुआ, और आवर को सेकेंड में करोगे तो 3600 नीचे मल्टीप्लाई, सो 1000/3600। इसको जब आप कट करोगे तो 5/18 आप पाओगे। डेट्स वाई सिंपली याद रखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना, और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना। सिंपली दिस इज द कन्वर्जन ऑफ मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। सो वी वेर देयर कि ये स्पीड अलग अलग सेक्शंस में आ गया। लेकिन अभी सपोज मेरे से क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि ओ से लेकर डी को ट्रेवल करने में व्हाट इज द टोटल एवरेज स्पीड। सो एज वी नो डैट डिस्टेंस हर सेक्शंस के लिए अलग अलग है, एंड टाइम इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर ईच सेक्शंस। सो अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग स्पीड आए हैं, तो एवरेज के लिए क्या करोगे, आप सभी स्पीड को ऐड करके डिवाइड कर दोगे तो इट विल गिव यू द रॉन्ग आंसर्स। एवरेज है, एवरेज कर दो, कितना स्पीड है, सपोज 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में अलग अलग स्पीड आया है, डिवाइड बाय 5 कर दो तो आपको एवरेज स्पीड आ जाएगा। नो, व्हाट यू नीड टू डू कि टोटल जितना भी ट्रेवल किया है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने, आप उस सभी डिस्टेंस को ऐड कर लो, और टोटल जितना टाइम लगा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो सभी आप टोटल ऐड कर लो टाइम को, और इन दोनों का डिवीजन कर लो, तो इट विल गिव्स यू द एवरेज वैल्यू। सिंपली अगर आपको डिस्टेंस अलग अलग है हर सेक्शन का, या अलग अलग टाइम इंटरवल है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सपोज ओ टू डी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके एवरेज स्पीड के लिए आपने क्या किया, हर सेक्शंस के डिस्टेंस को ऐड किया आपने, और टोटल जितना टाइम लगा उसको आपने ऐड किया, और ये ऐड करने के बाद आपको 20+30+20+30 ये टोटल डिस्टेंस आ गया 100, और टोटल टाइम है 2 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स 3 सेकेंड 4 सेकेंड्स, सो दैट कम्स आउट टू बी 13 seconds. So 100/13 that will comes out to be average speed, and here average velocity will also be the same because distance and displacement दोनों ही सेम है। वहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन आएगा, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन आया सिंपली। सो दिस इज द एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। हाउ वी हैव टू कैलकुलेट average speed or average total distance travel divided by total time? I will do you numericals, some few numericals I will give you in the last lecture. So इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे एवरेज स्पीड्स। अब इस एवरेज स्पीड में क्या हो रहा है कि अगर हर इंटरवल के अंतर में अगर आपका स्पीड सेम हो रहा है, इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम अगर हर इंटरवल में अगर वो कर रहा है, अगर ट्रेवल कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है हर सेक्शन के लिए, ए बी बी सी। अगर ये हर सेक्शन में अगर आपको जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लगा है वो अगर सेम होने लगे, तो उसका स्पीड की वैल्यू क्या होगी, हर सेक्शन के लिए सेम होगी। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, अगर हर इंटरवल के लिए टोटल जितना आपको डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है, अगर वो सेम आ रहा है, सो इट विल गिव्स द uniform speed. Uniform speed simply if speed remains the same in the entire interval of duration. Entire interval is known as यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर हर इंटरवल का स्पीड अलग अलग, जैसे इस केस में देखो ओ ए के लिए 10 मीटर पर सेकेंड, ए बी के लिए 7.5 मीटर पर सेकेंड, बी सी के लिए 6.6, तो ये हर इंटरवल के लिए आपको स्पीड क्या अलग अलग आया है। तो अगर आपको इस तरह का अगर मोशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या हो गया, अगर आपको हर इंटरवल के लिए स्पीड की वैल्यू इक्वल आ गई, सेम आ गई तो यूनिफॉर्म, और अगर अनइक्वल आ गई तो नॉन यूनिफॉर्म। सिंपली इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आप हर सेक्शन के लिए अलग अलग कैलकुलेट करो, अगर वो वैल्यू इक्वल आने वाला है तो यू कैन से दैट दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसका स्पीड जो है किसी भी इंटरवल में ना तो इंक्रीज हुआ है ना तो डिक्रीज हुआ, जो शुरू में था वही स्पीड मेंटेन किया है। जैसे आप 40 किलोमीटर पर आवर से बाइक अगर आप चला रहे हो
और वो आप कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हो पूरे ड्यूरेशन में, तो दैट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन कहीं पर आप ट्रेवल करने में कभी 50 किए, कभी 30 किए, कभी 20 किए, जैसा कि नॉर्मली होता है, सो दैट विल बी द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उस नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि या तो उसने अनइक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या तो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल किया है, दोनों वाली बात हो सकती है। अनइक्वल मतलब क्या हो, या तो आपको ड्यूरेशन अलग अलग लगा है या आपको डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल हुआ है, तो दोनों केसेज है, दोनों केसेज में इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अगर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन बोथ द केसेज द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत में आपको हर इंटरवल में स्पीड क्या होने वाला है, इक्वल रहने वाला है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको हर इंटरवल में स्पीड क्या रहने वाला है, अनइक्वल रहने वाला है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस ये है कि किसी भी अगर आपको इंटरवल में स्पीड और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो रहा है तो दोनों इक्वल होने वाला है। बट अगर कहीं पर अगर डायरेक्शन वगैरह चेंज हो रहा है तो स्पीड को तो डायरेक्शन से मतलब नहीं, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा भी केस हो सकता है, सपोज एक यूनिफॉर्म मोशन, एक सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। सिंपली आप समझिए कि अगर उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है इंटरवल के साथ, लेकिन उसका स्पीड उतना ही मेंटेन है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है। बट स्पीड को तो डायरेक्शन से मतलब नहीं, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी विल डिपेंड्स अपॉन इट्स डायरेक्शन एज वेल। सो क्या होने वाला, उस वाले मोशन में उसका स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी हर इंटरवल में। ये आपको याद रखना, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डायरेक्शन वाज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरह से वेलोसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है आपको डायरेक्शन। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट, व्हाट इज रेट, व्हाट इज चेंज, ये आपको क्लियर है ना। सो क्या हो रहा है कि अभी सपोज ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, ये मोशन स्टार्ट करने की वजह से क्या हो रहा है कि स्टार्ट करने की वजह से या तो वो, तो आप ये देखेंगे कि अगर सपोज ये मोशन कर रहा है, सपोज एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर ओ से स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट ने, 1 मिनट आई विल डिस्क्राइब यू। सो आई विल यहां सपोज ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है, सपोज ऑब्जेक्ट ने यहाँ ओ से स्टार्ट किया है और ओ से ए बी सी डी 4 इंटरवल है इसमें, तो फॉर द सेक्शन ऑफ ए बी टोटल डिस्टेंस इज 5 मीटर, और उसको ट्रेवल करने में 1 सेकेंड का टाइम लगा है, तो टोटल स्पीड विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। फॉर द बी सी सेक्शंस टोटल डिस्टेंस इज 10 मीटर और टाइम इज 2 सेकेंड, सो 10 डिवाइड बाई 2 कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। फॉर द सी डी सेक्शंस टोटल डिस्टेंस इज 5 मीटर एंड टाइम इंटरवल इज 1 सेकेंड, सो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो हर इंटरवल के लिए स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, आपको सेम हो रही है। सो दिस इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन या और यूनिफॉर्म स्पीड। वो ऑब्जेक्ट अगर हर इंटरवल में स्पीड सेम हो रहा है तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे, अगर अलग अलग आएगा जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल में था तो डेट कम्स आउट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है यहाँ तक। नौ, अगर आपको ये यूनिफॉर्म केस अगर आएगा, आपको अगर वहाँ से अगर एवरेज वैल्यू पूछे तो आप सिंपली आप u प्लस वी डिवाइड बाई टू, यू इज हियर इनिशियल स्पीड, v इज हियर फाइनल स्पीड, आई विल टेल यू लेटर ऑन, u इज इनिशियल स्पीड, v इज फाइनल स्पीड। सो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो एवरेज वैल्यू दे देगा। अगर कोई बैट्समैन है वो हर मैच में सपोज 50-50-50 स्कोर कर रहा है और एवरेज वैल्यू पूछे, तो आप किसी भी दो मैच के रन्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, वही स्पीड वही होने वाला है। जैसे 50 अगर हर मैच में स्कोर कर रहा है तो 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2, डेट कम्स आउट टू बी 50। सिंपली अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन है, अगर वो स्पीड इक्वली रहने वाला है तो आप चाहे तो इनिशियल और फाइनल या किसी भी 2 इंटरवल के स्पीड को ले लो। आपको इनिशियल फाइनल इसलिए बोला गया है ताकि आपको स्टार्टिंग और एंड का पता चले, जो मतलब मोशन का पता चले। तो u प्लस वी इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाई 2, डेट गिव्स आउट टू बी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, अगर नहीं है तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपको टोटल डिस्टेंस और या टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को ऐड करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको एवरेज स्पीड आने वाला है। अब स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है और वेलोसिटी तीनों रहने वाला है, क्योंकि स्पीड इज ए स्केलर, वेक्टर वेलोसिटी इज अ वेक्टर। स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। नेक्स्ट अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर सपोज अब ऑब्जेक्ट जो है हर इंटरवल में कुछ ना कुछ स्पीड
या तो इक्वल रहने वाला है, या कुछ स्पीड बढ़ता जाएगा या कुछ घटता जाएगा, कुछ इंटरवल में ज़्यादा होगा, कुछ इंटरवल में कम होगा। तो अब ये स्पीड में जो चेंजेस हो रहा है ड्यू टू दैट मोशन, तो इस चेंज ऑफ मोशन, स्पीड के चेंज को जो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। सो फ्रॉम डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वी आर गिविंग अस स्पीड और वेलोसिटी। अब ये स्पीड में भी कुछ चेंज हो रहा है, इसके रेट की वजह से एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट होगा ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने आपको बोला एवरीथिंग इज वेरी लिंक्ड, सो काइंडली गो थ्रू ऑल माय लेक्चर्स और प्लीज आप केयरफुली सुनो इसको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विल गिव्स यू acceleration, simply their rate of change of distance or displacement was giving you speed और velocity। यहाँ पर rate of change of speed क्या देने वाला है, acceleration देने वाला है। simply rate का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बोला है with respect to time, change का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करोगे, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइड बाय टाइम। किसी भी इंटरवल में, सपोज एक इंटरवल में 5 मीटर आप बाइक चला रहे हो 40 के स्पीड से, आपने सेकंड देखा कि बहुत ही स्मूथ रोड है, मस्त रोड है, तो आपने क्या किया, स्पीड एक्सेलरेटर दबाया और मोशन को, स्पीड को बढ़ा दिया, 50 पहुंच गए, तो चेंज कितने का हुआ, 10 का। तो दैट इज इट्स चेंज, वही चेंज की बात हो रही है। फाइनल आपका 50 है लेकिन पहले आपका 40 पे चल रहा था, और कितने ड्यूरेशन में आपने किया है, दैट कम्स आउट टू बी टाइम। सो ए जो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए विल बी वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। वी यहाँ पर फाइनल स्पीड, यू इनिशियल स्पीड, डिवाइड बाय टाइम गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए अगर फाइनल स्पीड, अगर आपने पहले से स्पीड अगर इंक्रीज किया है, अगर वी की वैल्यू ज़्यादा है तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। अगर वी की वैल्यू पहले से डाउन हो गई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि जो चेंज का मतलब होता है, अगर फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से क्वांटिटी से ज़्यादा हुआ, अगर आपने 40 के स्पीड पे मूव कर रहे थे, अगर आप 50 के स्पीड पे उसको ले गए, तो ऑब्वियसली है कि आपने स्पीड को बढ़ाया, तो अगर बाद के वैल्यू पहले की वैल्यू से ज़्यादा होगी तो डैट उसका डिफरेंस क्या आने वाला है, पॉजिटिव। अगर पहले 40 था बाद में 30 हो गया तो डिफरेंस विल भी 30 माइनस 40। वहाँ ये नहीं करना है कि ज़्यादा में से कम, दैट इज नॉट द चेंज, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल स्पीड इंक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर फाइनल का स्पीड कम होने वाला है तो फाइनल माइनस इनिशियल करने से वो निगेटिव आएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब बाद का स्पीड, फाइनल स्पीड विल मोर देन द इनिशियल स्पीड, इट गिव्स आउट टू बी पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इफ फाइनल स्पीड विल less than the initial speed, it gives out to be a negative acceleration. And when will be the zero value, if it is uniform motion, uniform motion में there will be no changes in the speed, so whatever is the final speed and whatever is the initial speed, if both the difference will be zero and acceleration comes out to be zero, so it is possibility कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म में स्पीड में है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो। एक्सेलरेशन जीरो से आप ये मत समझना कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप कब होगा, जब उसका स्पीड जीरो होगा, ना कि एक्सेलरेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है पहले के रिस्पेक्ट में, सो फाइनल वैल्यू अगर ज़्यादा हो रहा है तो इट विल बी positive. If final speed is less than the initial, then it comes out to be negative. If final speed and initial speed both are same, then it comes out to be zero. So if there is a motion in the object, so it can be positive acceleration, it can be negative acceleration, it can be zero acceleration. So from here we can derive a formula: a equal to v minus u divided by t. A is the acceleration, v is final speed, u is initial speed, t is time taken. So v minus u will be equal to a into t, multiply उधर जाके, so v equal to u plus at. This is also a equation of motion which we will discuss later on. तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि जो फाइनल स्पीड होगा वह इनिशियल स्पीड प्लस ए इंटू टी, सो इट कम्स आउट टू बी द वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन which we will discuss in the later on. So where v is the final speed, u is the initial speed, a is the acceleration of an object and t is the time taken by the object. So यहाँ से आप एक फॉर्मूला डिराइव करोगे। सो एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता चल गया। आई विल टच वन कॉन्सेप्ट एंड, और उस कॉन्सेप्ट को अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आगे लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सिंपली आपको एक चीज़, मैंने आपको लिंकेज की बात की थी, अब एक बात मैं बताता हूं। अगर आप बाइक चला रहे हो, बाइक से स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा होगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन कहाँ से मिल रहा होगा। तो सिंपली यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है फोर्स का, कि ड्यू टू एनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मोशन का स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो उसका एक लॉजिक क्या होता है कि बेसिकली इस एक्सेलरेशन इज काउज्ड ड्यू टू सम फोर्स।
अगर वो फोर्स का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट का जो मोशन है दोनों का डायरेक्शन इक्वल हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया, तो स्पीड विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अगर बाइक से आप जा रहे हो, आपने स्पीड बढ़ाया, तो आप उसके बदले में क्या खर्च करते हो? आप पेट्रोल जलाते हो। इट मीन्स दैट सम एनर्जी हैज़ बीन डन, सम एनर्जी हैज़ बीन वेस्टेड टू इंक्रीज द स्पीड। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फोर्स की वजह से आप उसके उसके डायरेक्शन में अगर मोशन करोगे तो उसका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन सपोज आप एक साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाने में आप पैडल को क्या करो, कंटिन्यूअस आप घुमाते मत, एक बार पैडल चलाए आप रुक जाओ, तो धीरे धीरे क्या होगा, साइकिल स्टॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों ये कम होना स्टार्ट होता है? बिकॉज देर इज अ फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन। वो फोर्स क्या हो रहा है, वो अगर फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स हुआ, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो उसका डायरेक्शन दोनों अगर रिवर्स हुआ, तो उस केस में स्पीड क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स है, तो उस केस में स्पीड इंक्रीज हो डिक्रीज हो के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन इक्वल हो गया तो वो स्पीड हमेशा इंक्रीज ही होता जाएगा। बस इतना ही याद रखो, बाद में फोर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपको क्या समझना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है और उस मोशन करने में उसका अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। और उस स्पीड को इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव। अगर कोई एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि उसके स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन उसके ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है, जो कि उसके स्पीड को धीरे धीरे कम करते 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 जीरो पे ला देगा। इट मीन्स दैट वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। और अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कि यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब उसका स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप उसमें फोर्स नहीं लगा रहे, एक्स्ट्रा कुछ उसके डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहे हो, सिंपली उसके अंतर्गत क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्योंकि ना तो वो एक्सेलरेट हो रहा है, ना वो रिटार्डेट हो रहा है, ना वो उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ना इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। तो अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, अगर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव आएगा। अगर निगेटिव आ गया तो उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, या उसका दूसरा नाम भी होता है रिटार्डेशन। So I think these all concepts is very clear and all is very linked. Carefully watch the video, carefully listen the video, और आप उसको बार बार सुनो। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, ये एक्सेलरेशन कैसे पॉजिटिव आएगा, कब निगेटिव आएगा, कब जीरो आएगा, क्यों बढ़ रहा है, फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। सो दिस ऑल आर द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स which we will discuss later on also in the next topic. In the next lecture I will discuss this. So I think that everything is very clear और we are going in a interesting way, और आपको पता चलेगा कि सभी इतना अच्छे से लिंकेज है कि आप फोर्स से ग्रेविटी, मोशन, वर्क एनर्जी, हर कुछ में आप पहुंच जाओगे। एंड आई विल फील यू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। So my basic motto is not to go through line by line in your study or in your syllabus. Simply I want to build up a concept which will be very advantageous to you in your future also. So thanks for today. We will discuss our next lectures about force and all the equations of motion, graphical representations, everything we will discuss on. Take care of your health, और तब तक के लिए thanks you and bye bye.